متفرق مقامات سے شہادات موصول ہوئیں۔ شہادات کافی تعداد میں آئیں۔ پوری کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ آج چاند نظر آ گیا ہے اور عید الفطر 24 مئی 2020 کو ہوگی۔ شوال کا چاند نظر آ چکا ہے۔ لاہور سمیت پاکستان بھر میں آج عید ہوگی۔ چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مفتی منیب الرحمان نے عید کے چاند نظر آنے کا اعلان کر دیا ہے۔ سٹی 42 نیوز کی جانب سے اہلیان لاہور کو چاند رات کی خوشیاں مبارک۔ شہر بھر کی مساجد میں معتکفین نے شوال کا چاند نظر آتے ہی اعتکاف ختم کر دیا۔ اعتکاف پر بیٹھنے والوں کو ان کے عزیز و اقارب نے پھولوں کے ہار پہنا کر اور مٹھائیاں کھلا کر ان کا استقبال کیا۔ لاری اڈا بسوں کی سیٹس پوری نہ ہونے پر مسافر انتظار کی سولے پر لٹک گئے۔ ٹرانسپورٹرز کی جانب سے SOPs پر بھی عمل درآمد نہیں کروایا جا رہا۔ مسافروں کا انتظار کر رہے ہیں، بسز فل نہیں ہو رہی۔ ٹرانسپورٹرز کی جانب سے یہ کہا گیا، ادھر جزوی ریل آپریشن کی بحالی پر 30 ٹرینز کی آمد و رفت جاری۔ استفادہ کرنے والے مسافروں کی تعداد انتہائی کم ہونے پر ریلوے حکام مایوس۔ عید کا اعلان ہوتے ہی شہری بازاروں میں نکل پڑے۔ کپڑوں، جوتوں، جیلری کی خریداری کے لیے انارکلی بازار، اچرا اور چوک یتیم خانہ مارکیٹ میں شہریوں کا ازدحام۔ مال روڈ، ہال روڈ، گلبرگ، ماڈل ٹاؤن اور کریم بلاک مارکیٹ کے شاپنگ پلازے خریداروں سے بھر گئے۔ شہریوں اور تاجروں نے حکومتی SOPs ہوا میں اڑا دیے۔ شہر کی 5000 سے زائد مساجد، 190 کھلے مقامات پر نماز عید ہوگی۔ عید ایام میں سیکیورٹی سخت، کورونا SOPs پر عمل درآمد کروایا جائے گا۔ لاہور پولیس آپریشنز ونگ کا سیکیورٹی پلان جاری۔ مارکیٹ، شاپنگ مالز کی سیکیورٹی کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل۔ سادہ لباس میں اہلکار ہلڑ بازی روکنے کے لیے تعینات ہوں گے۔ عید اجتماعات، قبرستانوں کے لیے خصوصی سیکیورٹی پلان بنا لیا گیا۔ تیرے ساتھ نے جنہیں ہنسایا تھا، تیری یاد میں وہ آج روتے ہیں۔ تجھے کھو کے ہم نے دوست یہ جانا، کچھ لوگ کتنے خاص ہوتے ہیں۔ یہ کون چل بسا یہاں ہر آنکھ اشکبار ہے، کلیجہ غم سے پھٹ گیا یہ دل بھی اب بیکار ہے۔ 24 نیوز کے سینئر ڈائریکٹر کرنٹ افیئرز پروگرامنگ انصار نقوی بھی طیارے حادثے میں شہید۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے تصدیق کر دی۔ انصار نقوی کی اہلیہ کو شہادت کے بارے میں آگاہ کر دیا گیا۔ اب تک 97 شہادتوں کی تصدیق، 19 لاشیں لواحقین کے حوالے کی جا چکی۔ بیشتر لاشیں ناقابل شناخت، انگوٹھوں اور DNA کے ذریعے لاشوں کی شناخت جاری۔ ماڈل زارا عابد کی شہادت کی بھی تصدیق۔ وہ سادگی کے فلسفے میں محنتیں سکھا گیا۔ الوداع انصار نقوی صاحب، الوداع۔ انصار نقوی کی شہادت پر سٹی نیوز فیملی کا دل گرفتہ تھا۔ انصار نقوی آزادی اظہار کی روایات کے امین تھے۔ کہنا مشق صحافی، سچے اور باوصول انسان تھے۔ صحافتی اقدار کی نئی جہتیں شروع کی۔ سٹی نیوز گروپ کو عوامی اعتبار اور پسندیدگی کی صنعت دلائی۔ بہت دھیما مزاج رکھتے تھے، کبھی ان کی آواز بلند نہیں سنی، کہا بھی وہ بہت ہی یعنی سوبر طریقے سے لگاتے تھے۔ شخصیت بہت مہربان، ہر ایک کے ساتھ دوستانہ تعلق، ہمارے ساتھ وہ اس کی خیر تھی اور وہ بڑھتے بڑھتے ایک میں سمجھتا ہوں کہ فرینکنس کے اثر چلے گی۔ 42 کی یہ تو ریڑھ کی ہڈی تھے، وہ بہت ہی نفیس شخص تھے، بہت ہی خاص انسان تھے۔ انہوں نے صحافت میں بہت ہی جاپسانی، دیانتداری اور پرسنالٹی کے ساتھ اپنی خدمات انجام دی۔ میرے لیے ان کا درجہ جو ہے بڑے بھائی کا رہا ہے، تو ہمیشہ بڑے بھائی کی طرح ہمیشہ گائیڈ کرنے والے، بہت شفیق انسان، بہترین پروفیشنل، بہترین کام کرنے والے، اپنی ٹیم کو ساتھ لے کے چلنے والے، تو بہت ایک زبردست ٹیچر۔ خاندان سے زیادہ، اپنے خاندان کے لوگوں سے زیادہ ہمارے آپس میں رہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ڈائریکٹر پروگرامنگ 24 نیوز سید انصار نقوی کی شہادت پر اظہار تعزیت کہتے ہیں، مرحوم کی صحافت میں خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی جانب سے بھی اظہار افسوس۔
कहा दुख की घड़ी में कौम मरहूम के अहले खाना के साथ खड़ी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो बोले, अंसार नकवी को उनकी सहावती खिदमात पर खिराजे तहसीन पेश करते हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं, अंसार नकवी का सबके साथ मोहब्बतें बांटने वाला रिश्ता था। अंसार नकवी समेत तमाम शोहदा के अहले खाना से दिली हमदर्दी है। अंसार नकवी ने सारी जिंदगी सहाफत के लिए वक्फ कर दी। 1991 से 2002 तक हैदराबाद में द न्यूज़ के ब्यूरो चीफ रहे। 12 साल तक जियो न्यूज़ में बतौर कंट्रोलर न्यूज़ खिदमात सर अंजाम दी। अंसार नकवी कुछ अरसा बोल न्यूज़ से भी वाबस्ता रहे। 1 जुलाई 2015 को लाहौर में सिटी 42 न्यूज़ को बतौर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ ज्वाइन किया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। त्यारा हादसे में शहीद होने वाले कैबिन क्रू की मैयतें लाहौर पहुंच गईं। शहीद कप्तान सज्जाद गिल और फ्लाइट स्टीवर्ड अब्दुल कयूम की लाहौर एयरपोर्ट पर नमाज जनाजा अदा। फ़िज़ाई मेज़बान फरीद अहमद की नमाज जनाजा नज़ीर गार्डन जल्लो में अदा। तदफीन भट्टा चौक बाग रहमत में की गई। तैयारा हादसे में शहीद होने वाले फर्स्ट ऑफिसर उस्मान आजम यादें छोड़ गए। उस्मान आजम की रिहाइशगाह जोड़े पुल पर ताज़ियत के लिए लोगों की आमद का सिलसिला जारी। इलाका मकीनों ने उस्मान आजम को नेक सीरत करार दिया। कहते हैं उस्मान आजम से ज्यादातर मुलाकात मस्जिद में होती थी, जबकि उस्मान आजम की नाश की शनाख्त ताहाल नहीं हो सकी है। घर वाले आस लगाए बैठे हैं। हादसे का शिकार तैयारे के जांबाग मुसाफिरों के वरसा लाहौर से कराची चले गए। वरसा PIA की परवाज 8305 में रवाना हुए। जांबाग मुसाफिरों के DNA टेस्ट के लिए डॉक्टर्स की 4 रुकनी टीम भी कराची रवाना हो गई। चीफ कमर्शियल ऑफिसर नौशेरवान आदिल का लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। उधर जान की बाजी हारने वाली एयर होस्टेस अनंत की वालिदा मुआवजे की मुंतज़िर। अनंत के वालिद और अहले खाना शनाख्त के लिए कराची चले गए। शहर में कोरोना के 28 नए केसेस सामने आ गए। मुतासरा शहरियों की तादाद 8,805 हो गई। 123 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। पंजाब में कोरोना वायरस के 275 नए केसेस, तादाद 18,730, जबकि SHO कला गुज्जर सिंह समेत 2 रोज में मजीद 68 पुलिस एहलकारों में कोरोना की तस्दीक। मुतासरा एहलकारों की तादाद 557 हो चुकी है। अब तक 3 एहलकार शहीद हो चुके हैं। कोरोना वायरस ने एक और जान निगली। मारूफ कानूनदान बैरिस्टर एतजाज एहसन के भाई इंतकाल कर गए। मरहूम डॉक्टर एजाज का इंतकाल कोरोना वायरस के बायस हुआ। सियासी और समाजी रहनुमाओं की जानिब से डॉक्टर एजाज के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार। वजीर तवानाई पंजाब डॉक्टर अख्तर मलिक भी कोरोना का शिकार। सूबाई वजीर ने टेस्ट मुस्बत आने की तस्दीक कर दी। खुद को घर में ही क्वारंटीना कर लिया। वजीर तवानाई की ट्विटर अकाउंट से शहरियों से जल्द सेहतियाबी के लिए दुआओं की अपील। कोरोना के मरीजों को घरों पर आइसोलेशन की इजाजत। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के मरीजों का रश कम होने लगा। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 602 मरीज जेरे इलाज। 21 की हालत तशवीशनाक होने पर वेंटिलेटर पर रखा गया है। ईद आ गई मगर महंगाई कम ना हो सकी। मुर्गी की कीमत को पर लग गए। जिंदा मुर्गी 15 रुपए इजाफे के बाद 211 रुपए। मुर्गी का गोश्त 22 रुपए इजाफे के बाद 306 रुपए किलो फी किलो फरोख्त। मुनाफाखोरों की कोई सिफारिश नहीं मानी जाएगी। ईद के बाद दोबारा पोल्ट्री एसोसिएशन के साथ बैठेंगे। वजीर सनत मियां असलम इकबाल की पोल्ट्री एसोसिएशन के वक्त से गुफ्तगू। बोले, पोल्ट्री एसोसिएशन ईद के 3 रोज गोश्त 260 रुपए फी किलो फराहम करेगी। महंगा गोश्त बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तहरीक इंसाफ का सेहत सहूलत प्रोग्राम पर खतीर फंड्स मुख्तस करने का फैसला। आइंदा 5 साल में सेहत सहूलत प्रोग्राम पर 72 अरब मुख्तस करने की तजवीज़, जबकि नए माली साल में 12 अरब 52 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन की जानिब से महकमे खजानों को प्रपोजल अरसाल। शहर में स्ट्रीट क्राइम के तदारुक के लिए बनाई फोर्स मुश्किलात का शिकार। डॉल्फिन और पीरू फोर्स की बेशतर बाइक्स और कार्स मुद्दत मेयाद पूरी कर चुकी। पुलिस ने डॉल्फिन और पीरू का पहिया
रवा रखने के लिए हुकूमत से नई हैवी बाइक्स मांग ली। एसपी डॉल्फिन आयशा भट्ट के मुताबिक पीरू और डॉल्फिन फोर्स की कार्स और हैवी बाइक्स 3 शिफ्ट्स में मुसलसल चलती रहीं, जिससे उनकी हालत अबतर हो चुकी है। लाहौरियों के लिए बुरी खबर, ईद पर शदीद गर्मी पड़ेगी। ईद के आयाम में दर्जा हरारत 47 तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी, आइंदा हफ्ते दर्जा हरारत मजीद बढ़ेगा। मई गर्म तरीन महीना होगा। मई के इख्तिताम पर नया सिस्टम दाखिल होगा, जिससे तेज आंधी के साथ बारिश होगी। रायवन के इलाके में जनरल स्टोर पर डकैती वारदात। मोटरसाइकिल सवार 2 डाकू गन पॉइंट पर नकदी और मोबाइल ले उड़े। नकाबपोश डाकू खरीदारी के बहाने दाखिल हुए। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। पंजाब फूड अथॉरिटी ने ईद के मौके पर शहरियों को जाली कोल्ड ड्रिंक्स पीने से बचा लिया। कार्रवाइयों के दौरान 7 जाली फैक्ट्रीज पकड़ ली गई हैं। 7093 लीटर जाली कोल्ड ड्रिंक्स जब्त की गई हैं। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक जाली कोल्ड ड्रिंक्स ईद पर छोटे स्टोर्स के साथ साथ बड़े स्टोर्स पर भी सप्लाई की जाना थी। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार से वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की मुलाकात। कोरोना वबा से निमटने के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की जारी करदा SOPs पर मौसर अंदाज में अमल दरामद की हिदायत। शहरियों से चांद रात और ईद पर समाजी फासले बरकरार रखने की अपील। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन के मामले ने फिर सर उठा लिया। महकमे बल्दियात और इलेक्शन कमीशन के माबैन मामला तय पा गए। महकमे बल्दियात ने इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात दूर कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने ईद के बाद हल्का बंदियों का इंडिया दे दिया। कोरोना को संजीदगी से ना लेने की वजह से केसेस बढ़ रहे हैं। डर है कोरोना की वजह से कहीं टॉप 10 में ना आ जाए। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर का रावी रोड पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब। कहा, लॉकडाउन में नरमी का मकसद ये नहीं कि कोरोना खत्म हो चुका है, मईशत को बचाने के लिए नरमी का फैसला किया गया। कोरोना SOPs पर अमल दरामद ना किया तो नताइज खौफनाक होंगे। लीगी रहनुमाओं की जानिब से फलाही सरगर्मियों का सिलसिला जारी। मियां मुज्तबा शुजाउर रहमान की जानिब से NA 124 के मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम। लीगी रहनुमा की जानिब से शाहजूल लेबॉर्ट्री में राशन की क्वालिटी का भी जायजा लिया गया। कलमा चौक में तहफ़्फ़ुज़ फाउंडेशन के ज़रिए मुस्तहिक अफराद में भी राशन तकसीम किया गया। उधर सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट ने दुकानदारों और गाहकों में मास्क तकसीम किए। त्यारा हादसे से शहर की ताजिर बरादरी भी सोगवार। अंजुमन ताजरान नई मीर ग्रुप की जानिब से त्यारा हादसे के शोहदा सीनियर सहाफ़ी अंसार नकवी के साले सवाब के लिए फातिह ख्वानी का एहतमाम किया गया। नई मीर कहते हैं शोहदा और जख्मियों के लवाहिकीन के दुख में बराबर के शरीक हैं। और खूब से खूब तर नजर आने की जुस्तजू। ब्यूटी सैलून्स पर ईद की गहमा गहमी। खवातीन की बड़ी तादाद ने ब्यूटी सैलून्स का रुख कर लिया। मुतअद्दिद ब्यूटी सैलून्स पर कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर को नजरअंदाज कर दिया गया।